Good morning, class. I'll be discussing with you accounting procedures, rules of debit and credit. Fine. So, let us begin with the session. Let us begin with the session. This session is on rules of debit and credit. First of all, I must tell you that rules of debit and credit, there are two approaches. There are two approaches. First is traditional approach and second is modern approach. Okay? Traditional and modern approach. So I'll be starting with modern approach first. It is considered to be easier than the traditional approach. So in next class, we will be switching to traditional approach and will tell you that how we debit and credit different accounts as per modern approach today, and we will be discussing later that how we uh, debit and credit the different accounts as per traditional approach. So first let us take modern approach. Modern approach of debit and credit the different accounts. So as per the modern approach, we classify the accounts into 5 categories. Into 5 different categories. So first is capital, second is liabilities, and third is profit या gains, profits या gains, and fourth is assets, and fifth is expenses and losses. So as per modern approach, we classify all types of accounts into 5 major categories. These are 5 major categories. Now let me tell you the rules of debit and credit. Okay. First, I should tell you the comfortable position of all these 5 accounts. Assets are more comfortable in debit position. Assets have the debit balance always. They are comfortable in debit balance. Expenses are comfortable in debit balance. Capitals are comfortable in credit balance. Similarly, liabilities and profits and gains are comfortable in credit position. So comfortable means जहां आपके पास कुछ है, आपके बैलेंस में कुछ है, जहां आपके पास कुछ होता है वहां आप कंफर्टेबल होते हैं, वो आपके लिए फेवरेबल पोजीशन होती है. तो कैपिटल, लायबिलिटीज और प्रॉफिट्स के लिए क्रेडिट पोजीशन फेवरेबल पोजीशन है. एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए डेबिट पोजीशन एक फेवरेबल पोजीशन है. तो फेवरेबल मतलब जब आपके पास कुछ बढ़ता है तो वो फेवरेबल होता है. आपको लर्न भी हो जाएगा इस टेक्स्ट से. जब कुछ बढ़ता है तो आपके लिए वो फेवरेबल होता है. तो डेबिट ही तब करेंगे जब कुछ इंक्रीज होगा, और इनके लिए जब कुछ इंक्रीज होगा तब ये क्रेडिट करेंगे. हमारे लिए फेवरेबल क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज. हमारे लिए हमेशा फेवरेबल होता है कोई भी अकाउंट इंक्रीज हो, बढ़ता जाए. ये कहेगा मेरे को पूरा होना चाहिए, कहेगा मेरे को इंक्रीज होना चाहिए, कहेगा मेरे को इंक्रीज होना चाहिए, ये कहेगा कि मेरे को इंक्रीज होना चाहिए. तो ये सब चाहेंगे कि मैं इंक्रीज हूं, कोई डिक्रीज होना नहीं चाहता. ठीक है. तो कंफर्टेबल पोजीशन किसी के लिए भी क्या होती है? जब वो इंक्रीज होता है. तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के लिए डेबिट पोजीशन कंफर्टेबल पोजीशन है, फेवरेबल पोजीशन है. कैपिटल, लायबिलिटीज एंड प्रॉफिट्स के लिए क्रेडिट पोजीशन फेवरेबल पोजीशन है. तो जब भी ये इंक्रीज होंगे ये क्रेडिट होंगे, ये जब भी इंक्रीज होंगे ये डेबिट होंगे.
अब इनके लिए जो अनफेवरेबल पोजीशन है वो है डेबिट। ये जब भी डेबिट होंगे, जब भी डिक्रीज होंगे तब डेबिट होगा कैपिटल। सिमिलरली लायबिलिटीज जब भी डिक्रीज करेगी ये डेबिट होगी। प्रॉफिट्स जब भी डिक्रीज करेंगे ये डेबिट होगी। और जब एसेट्स डिक्रीज करेगी ये क्रेडिट होगी। एक्सपेंसेस जब भी डिक्रीज करेंगे ये क्रेडिट होंगे, क्योंकि जब इनके लिए फेवरेबल पोजीशन डेबिट है तो अनफेवरेबल क्रेडिट होगी, इनके लिए फेवरेबल पोजीशन क्रेडिट है तो अनफेवरेबल डेबिट होगी। फाइन। So this is the rules of debit and credit as per modern approach for 5 different categories of accounts. We can categorize the accounts into 5 broad categories. Now let me take the examples of these. Capital, we know the amount invested by the owner into the business is known as capital. Okay, the amount invested by the owner into business is known as capital. Capital has two accounts, capital account and drawing account. Liabilities, whatever we owe to some other person, जो हमने किसी से कुछ लिया है हमें वापस करना, वो लाइबिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, लोन्स, डिबेंचर्स, ये सारा लाइबिलिटीज में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स में आएगा आपका, जैसे आप कोई भी इनकम रिसीव कर रहे हैं, जैसे रेंट रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, ये सारा आपका आ जाएगा प्रॉफिट्स या गेन्स में। देन एसेट्स हो गया आपका। एसेट्स आपकी सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं जो आपके पास हैं, जिनसे आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, जिनको एसेट्स आर दोज इकोनॉमिक रिसोर्सेज व्हिच यू आर यूटिलाइजिंग टू रन योर बिजनेस। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टेशनरी अमाउंट, फर्नीचर, ये सारे आपके एसेट्स होते हैं। पेटेंट्स, गुडविल, जो भी कुछ आपके पास है, रिसोर्स है जो आपकी, जिससे आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, वो एसेट्स में आ जाएंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरीज पेड आपके एक्सपेंसेस हैं, वेजेस पेड आपके एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट गिवन टू समवन, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी मशीनरी, सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो रूल्स आपको क्लियर हो गए। जब भी ये तीन अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन फॉल कर रही है तो वो अकाउंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट होगा, अगर डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट होगा। यहाँ पर एसेट्स या एक्सपेंसेस में जो कोई फॉल कर रहा है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और मैं आपसे पूछती हूँ कि वो किस कैटेगरी में आएंगे, तो आप मुझे प्लीज बताते जाइएगा कि वो किस कैटेगरी में आएंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ और उन एग्जांपल्स को आप मुझे क्लियर करते जाइए कि ये किसके अंदर आएंगे। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ आपका टीएस ग्रेवाल की बुक से। ठीक है, आप मुझे बस क्लियर करते जाइएगा, इनके आंसर्स देते चले जाइएगा। बिल्डिंग्स अकाउंट ही किस में आएगा पांचों में से? बिल्डिंग अकाउंट ये है हमारी एसेट, ये एसेट अकाउंट में आएगा। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन परचेजेस अकाउंट किसके अंदर आएगा? देखिए जब हम कुछ परचेज करते हैं, कुछ भी नहीं, किसी भी चीज को परचेज करने को परचेजेस अकाउंट में नहीं डालते हैं। अगर आप फर्नीचर परचेज करें तो फर्नीचर अकाउंट में डालेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में जिस भी गुड्स में डील कर रहे हैं, जैसे अगर आपका बिजनेस कपड़ों का बिजनेस है और कपड़ों में आप डील कर रहे हैं तो कपड़े आपके लिए गुड्स हुए। अगर आप फर्नीचर बेचते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, वही आपका बिजनेस, तो आपके लिए गुड्स क्या हुए? फर्नीचर आपके लिए गुड्स हुए। अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी आप बेचते हैं, तो स्टेशनरी आपके लिए गुड्स हो जाएगी। तो जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो उस गुड्स को हम बोलते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, तो अब परचेज अकाउंट है, आपने परचेज किया कोई भी चीज, जब आप परचेज कर रहे हैं गुड्स तो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंस में आ जाएगा।
ये एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से कैटेगराइज कर दीजिए कौन सा एसेट है कौन सा एक्सपेंस है। परचेज हम कुछ कर रहे हैं गुड्स, क्यों परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, कल को इसे बेचेंगे प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंस अकाउंट हो गया। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड एंड डेटर्स, ये किस में आएंगे, इनको कैटेगराइज कर लेंगे और रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आपको बता ही रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते चले जाएंगे। डेटर्स हमारी एसेट्स होती हैं, ये एसेट अकाउंट में आ जाएंगे। डेटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनसे हमें पैसा फ्यूचर में लेना है, रिसीव करना है। रेंट रिसीव, ये आपके लिए प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा आप कहेंगे से गेन, रेंट रिसीव, तो ये प्रॉफिट या गेन अकाउंट में आ गया, गेन या प्रॉफिट कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है क्रेडिटर्स, कैरेज इनवर्ड्स, ये किस में आएंगे, ये किस में आएंगे अकाउंट दोनों। क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है, ये हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी अकाउंट में आएंगे क्रेडिटर्स। कैरेज इनवर्ड हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, जब भी हम कोई सामान अपने अंदर फैक्ट्री में मंगवाते हैं उस पर जो खर्चा देते हैं वो कैरेज इनवर्ड कहलाता है, तो ये एक्सपेंस अकाउंट में आएगा। ठीक है, और क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, जो इंटरेस्ट ऐसा जो आपको देना है या आपके लिए लायबिलिटी है, जो भी कुछ आपको देना होता है वो लायबिलिटी में आता है। इंटरेस्ट पेबल जो आपको पे करना है वो आपके लिए आ जाएगा लायबिलिटी में। अब है आपका नेम दिया हुआ है अभिषेक, अभी है कौन, ये प्रोप्राइटर है यानी बिजनेस का ओनर है, तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया। कोई भी पर्सन अगर बिजनेस का ओनर है, ओनर आपको जो पैसा देता है वो कैपिटल अकाउंट में आता है, तो अगर ये प्रोप्राइटर है तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। अगर कोई नाम दिया हुआ है और वो क्रेडिटर है तो वो लायबिलिटी अकाउंट में आ जाएगा, और सिमिलरली कोई नाम दिया है वो डेटर है तो वो एसेट अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर भी कोई नेम ही होता है और यहाँ पर भी कोई नेम ही होता है, आपको क्लियर होना चाहिए वो नेम क्रेडिटर का है, डेटर का है या ओनर का है। अगर वो नेम ओनर का है तो कैपिटल अकाउंट, अगर वो नेम डेटर का है तो एसेट, अगर वो नेम क्रेडिटर का है तो लायबिलिटी। ठीक है, आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन में और क्या है। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक दोनों एसेट्स में आते हैं। कैश होगा वो भी एसेट अकाउंट में आएगा, बैंक होगा वो भी, बैंक बैलेंस भी एसेट होती है। हमारे पास जो कैश है, जो बैंक बैलेंस है वो हमारी एसेट होती है। उसके बाद में है बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कुछ बिल्स होते हैं जो हमें पे करने होते हैं, तो ये क्योंकि हमें पे करने हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं, ये बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल यानी कुछ हमें मिलना है, हमें कुछ लेना है फ्यूचर में, हमें कुछ लेना है तो वो हमारे लिए एसेट होते हैं। ठीक है, और एक है हमारे पास एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम किस में आएगा वो भी हम देख लेते हैं, है ना। ये तो मैंने आपको खैर सारा बता दिया, एक्रूड इनकम का बता देती हूँ। जो इनकम आपको मिलने वाली है फ्यूचर में, जो इनकम आपको फ्यूचर में मिलने वाली है वो आपके लिए एसेट हो गई क्योंकि आपको मिलेगी। एक्रूड इनकम, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक ही बात होती है, मतलब जो
ड्यू तो हो गई है पर मिली नहीं है, ये आपके लिए एक एसेट होगी। ठीक है, जो आपको फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है, नहीं ये आपको मिलेगी तो ये आपके लिए, सॉरी, ये अगर आपको फ्यूचर में आपको इनकम अभी ड्यू हो गई है, नहीं मिली है, तो ठीक है, तो आपके लिए एसेट होगी, एसेट ही होगी ये। फाइन। और अब दो तीन चीजें होती हैं यहाँ पर। ठीक, ये आपको भी मिलेगी। एक्टिव इनकम आपकी एसेट। ठीक है, सो नेक्स्ट में आप इसकी रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने आपको रूल्स बता दिए, कहाँ पर आप क्या कैटेगराइज करेंगे वो आपको बता दिया। अब जो मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको, इसके मॉडर्न अप्रोच के हेल्प से जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। So thanks for today.